I'm a mother, teacher, guide, and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik, and welcome to my channel, Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. So, for those of you who wish to understand what does Ikigai means, now Ikigai is a Japanese word that means reason for being. Okay, that means what's your life purpose. Ike in Japanese means life, and gai describes the value or worth. So, Ikigai means what is your life purpose? What is your bliss? What is it that brings you joy and inspires you to get out of bed every day? Namaskar. We all aim for some purpose in life, right? We all aim for some things that we need to take it up. Half the time we are totally ignorant of what is my Ikigai, what is my purpose of life. So there was a book which came. I read that book long ago. Now this is the second version. I know ये mirror में image आएगी आपकी because मैं सामने से कैमरे से record कर रही हूँ. But this book is the Ikigai journey. So this is the second edition, the second part of the first Ikigai book which I had read. So I just thought that okay, let me after reading this book I realized that okay, there are a lot of things that happened in my life also which are my Ikigai. Perhaps I can share them with you, which can somehow get resonated with somebody or many of you and then help you out. Namaskar, welcome to Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik, and thank you so much once again for this beautiful family. Thank you so much आपका बहुत सारा प्यार देने के लिए और तहे दिल से शुक्रिया और आभार. सो आज की वीडियो में मैं आपसे 7 ऐसी मेरी इकिगाई मोमेंट्स की मैं बात करूंगी जिनकी वजह से या मेरी लाइफ की जर्नी में जो मोमेंट्स ने मुझे टोटली ट्रांसफॉर्म किया और जिसकी वजह से और जिनको मैंने कहते हैं ना पकड़ के रखा और वो ही मेरे इकिगाई मोमेंट्स बने. सो आई होप आप इससे रेजोनेट इसलिए करो क्योंकि मुझसे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैम हमें नहीं समझ में आता व्हाट इज़ माय लाइफ पर्पस, व्हाई आई एम हेयर. मुझे दो तरफ से खिंचाव होता है. वन ऑन वन साइड आई एम wanting to be spiritual, on the other side it is my duty which I need to do, couple of things which I need to cover because मैं एक मदर हूँ या मैं एक फादर हूँ और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, फैमिली भी है, जॉब भी है, काम भी है, वर्क भी है, बिजनेस भी है. इन सब में उलझ के और दूसरी तरफ स्पिरिचुअलिटी है जो मुझे खींचती है और मैं नहीं समझ पाता या समझ पाती कि मैं किस डायरेक्शन में, वेयर डू आई लैंड अप. सो आज मैं अपनी लाइफ की उन 7 इकिगाई चीज़ों की बात करूँगी आपसे. सबसे पहली, फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट, स्टे एक्टिव, डू नॉट रिटायर. दैट इज़ वॉट आई ऑलवेज से. हम लोग अपने कम्फर्ट जोन में आ जाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. आई नॉट नेम बट आई हैव कपल ऑफ फ्रेंड्स ऑफ माइंड who became principals and they wanted to stay on in the same profession, in the same work. I'll not say there's anything wrong, but what I say is you need to revamp every now and then. You need to redo things now and then. You need to stay active. Active not only physically, active mentally, active emotionally. जब तक आपको एक कुछ नया मुकाम नहीं मिलेगा कि मुझे ये करना है या मुझे कुछ नया सीखना है या मुझे कुछ नया करना है, अदरवाइज क्या होता है 90% ऑफ द टाइम आई फील लाइक आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स, दोज ऑफ देम हु आर ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट या रिटायर होने वाली हैं या उन्होंने प्री रिटायरमेंट ले लिया एंड दे आर सिटिंग. अब वो ये कहते हैं हमारा टाइम पास नहीं होता, कि हमें समझ नहीं आता हम क्या करें, कितनी देर पूजा पाठ करें, कितना हम लोग फ्रेंड्स के साथ मिलें, क्या करें. It's like, and while we are at work, so half the time is spent while in the office or at the workplace, so things are very different then. So first and foremost, never retire. अपने सामने एक चैलेंज हमेशा रखो, अपने सामने वो चैलेंज रखो कि अब नेक्स्ट क्या, अब नेक्स्ट क्या, अब मुझे क्या करना है, किस तरह से अपने आप को मुझे एजाइल रखना है क्योंकि मेरा माइंड फ्रेश रहना चाहिए. एंड आई कोट यू वन एग्जाम्पल. माई मदर हु इज़ अबाउट 80, शी always does one sudoku every day. She does one sudoku every day, and not just that, she sends us lot of questions to do, and she says ki okay, solve this puzzle, solve that puzzle. And when she sends us, it's like, and she's always behaving like a child कि अच्छा इसका आंसर आपको नहीं आया, मैं बताती हूँ, या एंड एवरी टाइम इट्स अ डिफिकल्ट लेवल विच शी वॉन्ट्स टू गेट इन टू. शी सेज मुझे मज़ा आता है. सो आई ऑलवेज फील हैप्पी कि शी इज़ कीपिंग हर सेल्फ इंगेज्ड ऑल द टाइम एंड नॉट जस्ट सिटिंग आइडली, राइट. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, सराउंड योर सेल्फ विद गुड फ्रेंड्स. ये तो एक जीवन का ना कहते हैं निचोड़ है, सच है. हमारी फैमिली नो डाउट हमारे साथ है, हमेशा के लिए है और हमेशा हमारे साथ रहेगी, राइट. लेकिन जो आपकी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म
फ्रेंड्स कर सकते हैं, वो फैमिली उस हद तक नहीं कर सकती जितनी फ्रेंड्स कर सकते हैं। अब उन फ्रेंड्स में आपकी लाइफ को बदतर भी बना सकते हैं फ्रेंड्स, और आपकी लाइफ को बहुत अच्छा भी बना सकते हैं। आपको एक कहते हैं ना, निपक्ष तरीके से आपको राय देते हैं। दे आर द वन हु आर नॉन जजमेंटल बिकॉज दे नो यू इन एंड आउट, सो दे विल ट्राई एंड टेल यू देयर साइड ऑफ द स्टोरी, और एज एन आउटसाइडर दिस इज़ राइट और दिस इज़ रॉन्ग। सो अच्छे दोस्तों का होना बहुत अच्छा है। आप अपने आप को बहुत बार रिवाइंड करते हो, आप बहुत सारे ऐसे आपके दिल के राज होते हैं जो आप अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हो, शायद अपने नियर एंड डियर वन से नहीं शेयर कर सकते। कहते हैं ना, यारी दोस्ती, और जो बचपन वाली यारी दोस्ती होती है वैसी वाली यारी दोस्ती तो आई थिंक कभी मिलती ही नहीं है। सो ऐसे वाले दोस्तों को पकड़ के रखना चाहिए, संजो के रखना चाहिए। दिस इज़ द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई हैव लर्नड इन माई लाइफ। द थर्ड इज सराउंड योर सेल्फ विद दोज हु इंस्पायर यू टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। अक्सर देखा है जब हम मीटिंग्स में जाते हैं, गेट टुगेदर्स में जाते हैं, कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, तो हम ज़्यादातर अपने ग्रुप के साथ ही जुड़े रहते हैं और हम उनको देखना नहीं चाहते जो हमसे ऊपर है। क्यों? क्योंकि हमारे मन में या तो ईर्ष्या होती है कि वो हमसे अच्छा कर रहा है या कर रही है, या हम क्योंकि हम उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते तो अक्सर हम क्या कहते हैं कि उस इंसान में ये इतनी सारी खामियां हैं। तो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग दोज फॉल्ट्स, इंस्टेड ऑफ जजिंग देम, व्हाट कैन वी डू इज़ वी शुड लुक एट देम एज आर इंस्पिरेशंस एंड वी शुड लर्न फ्रॉम देम एंड वी शुड लर्न सो दैट वी इम्प्रोवाइज एवरी नाउ एंड देन, हम अपने आप को बेटर कर पाएँ। वो हमारे लिए बहुत 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 अच्छा होगा। द नेक्स्ट पॉइंट और द फोर्थ आस्पेक्ट इज स्माइल मोर एंड एक्नॉलेज द पीपल अराउंड यू। ये मैंने बचपन से सीखा। मेरी स्कूल में जो मेरी हेडमिस्ट्रेस मैम होती थी, वंती शर्मा मैम, आज भी हैं, भगवान उनकी उम्र लंबी दराज दे, वो हमेशा हर बच्चे से बहुत प्यार से मिलती थी। स्कूल के गेट पे खड़ी होती थी, अगर वहाँ नहीं हो तो क्लासरूम्स में घूम रही होती थी, आते जाते सबको बहुत प्यार से मिलती थी। मैंने उनके चेहरे पे कभी शिकन नहीं देखी, कभी गुस्सा नहीं देखा, कभी वो डर या दहशत नहीं देखी कि अगर प्रिंसिपल या हेडमिस्ट्रेस ऐसे हों तो हमें डरना है उनसे। तो वो डर कभी मेरे जहन में आया ही नहीं। तो वो चीज़ मैंने बचपन से उनसे सीखी कि कभी ज़िंदगी में मैं अगर ऐसा बनी तो मैं हमेशा इस तरह से ही रहूँगी। सो नॉट ओनली एट द वर्क प्लेस, अदरवाइज ऑल्सो I think that's what everybody loves about me, and that's what I love most about myself, that I love to smile and I love to give lots of happiness and warmth to anybody and everybody I meet. Then the next part is reconnect with nature. Believe you me, आपकी 90% हीलिंग हो जाती है अगर आप नेचर के साथ जुड़ते हो। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी 5 तत्वों की कि आप अपनी मेंटल एग्नी को कैसे ठीक कर सकते हैं उन 5 तत्वों से, और वो पाँचों के पाँचों तत्व हमारी नेचर में है। ज़मीन से लेके, आसमान से लेके, पानी से लेके, सूरज से लेके, हवा, एवरीथिंग। सो अपने बंद कमरों में से बाहर निकलो और हो सके तो हर रोज़ 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम बाहर नेचर को एंजॉय करो। भगवान ने इतनी खूबसूरत कुदरत बनाई है और वो उसी को अगर आप इंजॉय नहीं करोगे तो फिर आप किसको इंजॉय करोगे? बाकी सब आर्टिफिशियल है, मैन मेड है, सुपरफिशियल है, उसमें वो जन्नत का एहसास नहीं है जो एक एक्चुअली नेचर में जाके है। डोंट यू फील रिजुविनेटेड व्हेन यू गो ऑन द सी साइड? डोंट यू फील रिजुविनेटेड व्हेन यू गो ऑन द हिल्स? डोंट यू फील हैप्पी एंड फ्रेश व्हेन यू आर अंडर अ ट्री? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट 6th पॉइंट इज़ दैट आई ट्राई एंड लिव इन नाउ। हमेशा प्रेजेंट में जीना सीखो। प्रेजेंट को मैं जीती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि मुझे ज़िंदगी में जैसे सब कुछ मिल गया। बहुत साल पहले जब किसी भी ट्रिप पे जाया करती तो मैं ये सोचती थी कि वहाँ पहुँचने से पहले ही कि अब नेक्स्ट ट्रिप कहाँ होगा, अब नेक्स्ट कहाँ होगा। एंड वन फाइन डे अ फ्रेंड ऑफ माइंड मेड मी रियलाइज़ वो जब होगा तो होगा, अभी जहाँ हो उसको इंजॉय करो। एंड दैट हिट मी हार्ड। सिंस देन टू नाउ आई ऑलवेज ट्राई एंड लिव इन द नाउ। प्रेजेंट मोमेंट जैसा भी है उसको पूरी तरह से फील करके जी लो, बिकॉज वही प्रेजेंट मोमेंट है। पास्ट हो चुका, आप उसका कुछ नहीं कर सकते हो। फ्यूचर जो है आने वाला, आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो, विजन्स में सोच सकते हो, लेकिन आप वहाँ पहुँच के वो चीज़ें कैसे होने वाली हैं हमें भी नहीं पता, राइट? सो प्लीज लिव इन द नाउ। द लास्ट एंड नॉट द लीस्ट माई पॉइंट इज़ फॉलो योर पैशन। ये जो है ये पैशन है। जो YouTube का परिवार जुड़ा है ये पैशन है, इंस्टाग्राम फैमिली ये पैशन है, मेरा बीइंग अ टीचर एंड अ प्रीचर एक पैशन है।
तो ये एक पैशन ही है जो मुझे यहाँ तक ले आया, totally into a confined place, totally into a confined room, and totally into a confined school environment, I should say. From there to what I am here and doing all the things, only platform change हो गया, स्कूल वाले प्लेटफॉर्म से मैं वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे आ गई हूँ, और बस इतना ही डिफरेंस आया, बट तब भी एक टीचर थी और आज भी एक टीचर हूँ. एंड नाउ आई अंडरस्टैंड वाई आई वॉज नेम्ड सप्तऋषा. And I'm grateful to the gurus who kept that name for me. So thank you so much, and I hope अगर आप में से कुछ लोग भी इससे रेजोनेट होंगे, और अगर आधे लोग भी ये सोचोगे कि हाँ हमारी ज़िंदगी की इकिगाई क्या है, और उसमें हम उनको पॉइंट वाइज लिखें, और लिखने के बाद हम सोचें कि हम उसको कितनी बार करते हैं, तो वो लाइफ में एक किक ज़रूरी है, ताकि आप आगे अपनी लाइफ के चैप्टर्स को ब्यूटिफुली लिख पाएँ. ऑल द वेरी बेस्ट टू यू. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. स्टे अबंडेंट, स्टे हैप्पी, एंड स्टे ट्रांसफॉर्म्ड एंड ब्यूटिफुल, एंड मे यू blissfully enjoy your ikigai moments.